Hello students, in this video we will be discussing about some of the questions related to Raoult's law. Questions related to Raoult's law. Okay, so first of all we need to understand or we need to keep in mind the formula of Raoult's law. As we know, Raoult's law says that if there are two components, if there are two or more components in a solution, isn't it? And suppose if this, you can take an example of liquid solutions. You can apply for liquid solutions or you can apply for solid liquid solutions, but it should be liquid ultimately. So liquid solution, suppose I am having two liquids L1 and L2, both are able to convert into vapor, and as per Raoult's law, what I can say that the pressure of the gas in total will be equal to pressure occurred due to liquid 1 and pressure taking place or pressure exerted by liquid 2, P1 plus P2 है ना. ये हमारा रॉल्स लॉ का फॉर्मूला है. एंड P1 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, P1 नॉट है ना इंटू x1, एंड P2 को कैसे लिख सकते हैं, P नॉट 2 इंटू x2. You know the terminations. P1 naught means what? P1 naught is vapor pressure of pure solvent P1 है ना. P नॉट 2 और x1 ऐसे क्या है, x1 is मोल फ्रैक्शन ऑफ P1. ये था ना रॉल्स लॉ है ना. सो similarly P2 also vapor pressure of pure solvent P2 and x2 means mole fraction of P2, जो कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस करके रखा था. ठीक है. एंड नाउ द पॉइंट इज व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू कैलकुलेट P total फ्रॉम हियर. P total का फॉर्मूला क्या होगा, P1 नॉट इंटू x1 प्लस P नॉट 2 इंटू x2 है ना. ये हमारा अल्टीमेट फॉर्मूला है. इसको आप यू कैन चेंज, you can write as you know that sum of the mole fractions is always equal to 1. I can change this as x1 is equal to 1 minus x2 or x2 is equal to 1 minus x1. You can change like this, but this is the best way to remember the formula. Okay, this is the theory related to Raoult's law. Let us go to the numericals. Okay, so example 2.5, first numerical based on this is example 2.5. okay, so what does example 2.5 says? See, he is telling that vapor pressure of chloroform and dichloromethane, it is taking two components. Chloroform is CHCl3 and dichloromethane is CH2Cl2. इन दोनों का वेपर प्रेशर दिया गया है at 298 केल्विन. वेपर प्रेशर at 298 केल्विन कितना दिया गया है, इसका दिया गया है 200 mm of Hg, मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी प्रेशर का यूनिट है. एंड डाइक्लोरोमीथेन का कितना दिया गया है, 415 mm of Hg है ना. 200 mm of Hg एंड 415 mm of Hg है ना. क्वेश्चन में क्या पूछा है, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन. क्वेश्चन है फर्स्ट बिट, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर of the solution prepared by mixing क्या क्या मिक्स कर रहे हैं, 25.5 ग्राम्स ऑफ CHCl3 मतलब क्लोरोफॉर्म एंड 40 grams of dichloromethane CH2Cl2. This is the first bit. This is our first bit. Okay, so how to solve this? Let's see with the answer. आंसर, सी द क्वेश्चन. सो आपको क्या चाहिए, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन मतलब क्या है,
आपको टोटल वेपर प्रेशर चाहिए, पी टोटल। सॉल्यूशन में दोनों रहते हैं ना। पी टोटल इज इक्वल टू कैसे लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला P1 नॉट इंटू P1 नॉट इंटू x1 प्लस P2 नॉट इंटू x2, है ना। तो आपको जो दिया है 298 किलो, मतलब क्या है, आपका प्योर सॉल्वेंट का दिया गया है कितना कितना 200 415। तो आप 1 को मानेंगे, मान लीजिए CHCl3 मान लेंगे। 2 कौन होगा आपका कंपोनेंट, कौन होगा, ऑब्वियसली CH2Cl2 होगा, क्योंकि सॉल्यूशन है दोनों मिलके बना हुआ है। सो P1 नॉट का वैल्यू दिया गया है कितना, P1 नॉट का वैल्यू दिया गया है 200, P2 नॉट का वैल्यू भी दिया गया है कितना 415। आपको क्या क्या चाहिए, x1 चाहिए एंड x2 चाहिए, x1 चाहिए एंड x2 चाहिए। व्हाट आर x1 एंड x2, x1 and x2 आर योर मोल फ्रैक्शंस। x1 is a mole fraction of CHCl3। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CHCl3 बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CHCl3 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH2Cl2। लिख सकता है ना, लिख सकता हूं। और x2 को कैसे पता करूं, x2 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ CH2Cl2, दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस x1। मुझे अगर x1 मिल जाएगा तो x2 कैसे लिख सकता हूं। सो लेट्स गो फर्दर। हमें पता है, यहाँ से क्या पता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CHCl3 कैसे निकालना है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CHCl3 इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास ऑफ CHCl3। वैसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH2Cl2 इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास ऑफ CH2Cl2। okay, so we are given already the given mass of CHCl3 is already given value is how much, 25.5 grams. We can calculate molar mass of CHCl3. You can calculate how much carbon there is, one carbon 12 plus 1 hydrogen plus 3 into 3 chlorines. Okay, overall we will get how much, 119.5 ग्राम्स, है ना। वैसे इसका भी देख सकते हैं, इसका वैल्यूज कितना आएगा, गिवन मास कितना दिया गया है, गिवन मास ऑफ CH2Cl2 कितना दिया गया है, क्वेश्चन पे दिया गया है 40 ग्राम्स। चेक कर लीजिए, क्वेश्चन पे दिया गया है ना, दिस वन 40 ग्राम्स दिया गया है, ठीक है। देन मोलर मास ऑफ CH2Cl2 कितना होगा, CH2 मतलब एक कार्बन प्लस टू इंटू 35.5, टोटल आएगा 71 प्लस सॉरी हाँ 71 प्लस 12, है ना, तो 12 प्लस 2 टोटल इज 85 ग्राम्स, ठीक है। सो बाय पुटिंग दिस वैल्यूज विल गेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CHCl3, put these two values, number of moles of CHCl3 will give us how much, will be how much, 25.5 by 119.5. Similarly, number of moles of CH2Cl2 will be how much, 40 by 85. This will be nearly 0.213 moles, and this will be how much, 0.47 moles, 0.47 moles. Now what we can do, we can put these values, number of moles in that final formula. So P total is equal to, P1 value is given, P1 is how much, pressure of chloroform, how much it is given, pressure of chloroform given is how much, 200 into x1, we need to calculate x1 and x2, sorry, we got number of moles but we need to calculate x1 and x2. We'll calculate later this one. X1 will be how much, number of moles of CHCl3, x1 means what, CHCl3 का ही mole fraction by CHCl3 plus number of moles of CH2Cl2. put these values, 0.213 by, लंबा है लेकिन इजी है, 0.213 plus 0.47,
है ना. So this will get you how much, around 0.213 by this much. आपको मिल जाएगा अराउंड 0.312. वैसे x ऑफ CH2Cl2 पुट करेंगे, जरूरत नहीं, आप ऐसे 1 माइनस क्या कर देंगे, x ऑफ CHCl3 इज इक्वल टू आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, आपका वैल्यू आ जाएगा 0.688. आपको मिल गया मोल फ्रैक्शंस. नाउ गेट द P टोटल. P टोटल इज इक्वल टू P1, P नॉट कितना है 200 इंटू x1 कितना है 0.312 प्लस P2 नॉट कितना है, P2 नॉट का वैल्यू है 415 जो दिया गया है इंटू 0. कितना 688. ऐसे पुट करेंगे तो आपको P टोटल आ जाएगा. P टोटल अराउंड आ जाएगा 347.9 mm ऑफ Hg. आपका क्या मिल गया, P टोटल मिल गया. सो दिस इज योर फर्स्ट बिट आपको मिल गया है ना. So you can solve this. If there is some change in values, you can inform me, but this is a value you'll get 347.9 mm of Hg. ठीक है, इतना आएगा. ओके, नेक्स्ट. Okay, you can calculate these values if required. So the formula here we have put use P total is equal to P1 naught into x1 plus P naught 2 into x2. Okay, x2 we got here is for mole fraction of CH2Cl2 we got here is how much, 0.688 है ना. So x2 we got here is 0.688. Okay, so by putting all these values we'll get this value. Okay, yes, so this is P total. What is the second bit? The question is not yet over, huh? There is a second bit also. Question 2 or second bit in this only second question, using the is asking mole fractions of each component in vapor phase. Mole fractions of each component in vapor phase. This is the second bit. Okay, so how to solve this guys? आपको वेपर फेज में इस बार पूछा है, ठीक है ना. so यहाँ पे क्या क्या कंपोनेंट है आपको पता है, we have two components, pressure due to CHCl3 chloroform and pressure due to dichloromethane CH2Cl2. we have two components. so ये दो कंपोनेंट को आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, मोल फ्रैक्शन चाहिए. आपको P टोटल पता है कि नहीं, ये दोनों की वजह से P टोटल पता है आपको. P टोटल कितना आ रहा है, P टोटल जो निकाले थे ऊपर में 347.9 mm ऑफ Hg आ रहा है. दिस इज P टोटल. आपको ये P टोटल पता है, आपको मोल फ्रैक्शन चाहिए. आपको क्या चाहिए, मोल फ्रैक्शन चाहिए. एंड आपको ये भी पता रहना चाहिए कि एक एक जन का कितना प्रेशर है ना. तो ये क्या आपका, क्या है सब, दिस आर पार्शियल प्रेशर्स है ना. दिस इज पार्शियल प्रेशर and this is also partial pressure. These are partial pressures. ये दोनों मिलके क्या बन रहा है, टोटल प्रेशर बन रहा है. ये दोनों मिलके क्या बन रहा है, टोटल प्रेशर बन रहा है. तो हमें क्या चाहिए, पार्शियल प्रेशर चाहिए. पार्शियल प्रेशर को कैसे कैलकुलेट करते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू व्हाट, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस है ना, इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इनटू क्या लिखते हैं, प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ गैस. तो प्योर सॉल्वेंट का देखिए, अगर मैं इसका इन टर्म्स ऑफ CHCl3 का लिखना चाहूंगा तो इसका मोल फ्रैक्शन कितना आया था, गैस का मोल फ्रैक्शन हमें आया था इस केस में कितना आया था, प्रेशर आया था CHCl3 का निकाल रहे हैं ना. तो CHCl3 का आया था कितना, 0.312
0.312, इसको हम लोग यहाँ इसको यूज करेंगे। तो 0.312 इंटू टोटल प्योर सॉल्वेंट का कितना था, प्योर सॉल्वेंट का था 200, क्वेश्चन पे दिया गया था देखिए, है ना, प्योर सॉल्वेंट का दिया गया था 200, देखिए CH3 का कितना दिया गया था 200, है ना। तो ये इसका कितना आएगा 0.312 इंटू 200 मतलब कितना आ जाएगा 62.4 mm ऑफ Hg। वैसे प्रेशर ऑफ CH2Cl2 क्या होगा, इसका जो मोल फ्रैक्शन जो निकला है 0.688 इंटू कितना, इंटू उसका जो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट कितना था 415, ये कितना आएगा 285.5 mm ऑफ Hg। ये आपका क्या होगा, ये एक पार्शियल प्रेशर है, ये एक पार्शियल प्रेशर है। देखिए ये दोनों को ऐड करने के बाद आपको फुल टोटल प्रेशर आना चाहिए, ऐड करने पर कितना आएगा देखिए 347.9 mm ऑफ Hg। दोनों को ऐड करने पर आपका क्या आ गया 347.9 mm ऑफ Hg, आपका क्या आ गया पी टोटल, है ना। इसलिए सबको क्या बोल रहे हैं हम लोग पार्शियल प्रेशर्स। तो हम लोग ये सब कर क्यों रहे हैं, हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए मोल फ्रैक्शन इन गैस फेज, है ना, गैस फेज में मोल फ्रैक्शन चाहिए। तो आपको पता है कि टोटल प्रेशर कितना है, टोटल प्रेशर कितना है, टोटल पी टोटल है कितना निकला 347.9 mm ऑफ Hg, है ना, ये आपका पी टोटल है। उसमें से ClCl3 का कंट्रीब्यूशन कितना है ओनली 62.4, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ बाय यूजिंग डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ क्या बोलते हैं, डाल्टन्स लॉ क्या बोलता है आपको पता है, डाल्टन्स लॉ सेज दैट partial pressure of any gas can be written as mole fraction of gas into P total, मानते हो, यही है डाल्टन्स लॉ, है ना। P टोटल जितना भी है उतना इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस करोगे ना तो आपको P गैस मिल जाएगा, प्रेशर ऑफ दैट गैस मिल जाएगा। तो वैसे मुझे क्या चाहिए, मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस चाहिए। क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, क्वेश्चन में हमें पूछा देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट पूछा है ना। तो मेरे पास दो कंपोनेंट मान लीजिए, कंपोनेंट 1 कंपोनेंट 2, कंपोनेंट 1 का मोल फ्रैक्शन 1 इंटू पी टोटल, वैसे कंपोनेंट 2 का क्या होगा मोल फ्रैक्शन 2 इंटू पी टोटल। मुझे यहाँ पे क्या क्या चाहिए गाइस, मुझे चाहिए x1, x1 इज इक्वल टू क्या होगा P1 बाई पी टोटल, और x2 का क्या होगा यहाँ पे P2 बाई पी टोटल, समझ गए। तो यहाँ पे पहला केस में P1 किसको लेंगे, आप किसी को भी ले सकते हैं, मान लीजिए P1 आपने लिया फॉर CHCl3, है ना। तो इस केस में हम लोग दूसरा केस में अप्लाई करेंगे, x1 इज इक्वल टू P1 ले लिए P ऑफ CHCl3, तो यहाँ पे x किसका निकलेगा CHCl3 का निकलेगा ना, बाय P टोटल ले सकते हो। इसका मतलब P प्रेशर ऑफ CHCl3 कितना निकला गाइस, प्रेशर ऑफ CHCl3 हमें निकला था 62.4 mm ऑफ Hg, है ना। तो 62.4 mm ऑफ Hg बाय P टोटल, P टोटल कितना है 347.9 mm, है ना। ये डिवाइड कर देंगे तो आपको अराउंड आ जाएगा कितना 0.18, आपका क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ CHCl3 इन गैस कंपोनेंट, समझ गए ना, ठीक है। एंड वैसे आप x2 के लिए डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो ना, x2 इज इक्वल टू 1 माइनस x1, तो x ऑफ CH2Cl2 का क्या करेंगे 1 माइनस 0.18 कर सकते हैं, जो कि कितना आ जाएगा 0.82 आ जाएगा, समझ गए। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, ये आपका मैथमेटिकली हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, ये दिस इज एग्जैक्टली फॉलोइंग रॉल्स लॉ, ठीक है। तो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ ये क्वेश्चन में हमने क्या किया है, ध्यान से देखिए। हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया था, वी वर गिवन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट्स 200 mm एंड 415 mm, है ना। कब, जब ये पूरा के पूरा वो गैस बन के रहेंगे तभी इतना बनेंगे, उतना प्रेशर अप्लाई करेंगे वो लोग।
जब पूरा का पूरा अकेला गैस है। लेकिन हमारे पास क्या है, अभी सॉल्यूशन मिला दिया गया है। तो सॉल्यूशन जब मिला दिया गया है तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या होंगे, रॉल्स लॉ को फॉलो करना होगा। रॉल्स लॉ जब फॉलो करना होगा, ये फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा, पी टोटल इज इक्वल टू पी वन नॉट इंटू एक्स वन प्लस पी नॉट इंटू एक्स टू। पी वन नॉट कौन है, 1 2 जो कंपोनेंट्स हैं, आप CH Cl3 को 1 समझ जाइए, इजी होगा। CH2Cl2 को 2 सेकंड कंपोनेंट समझ जाइए। वैसे 3 कंपोनेंट होते तो क्या लिखते हैं, P1 नॉट इंटू एक्स वन प्लस पी नॉट 2 इंटू एक्स टू प्लस पी नॉट 3 इंटू एक्स थ्री, ऐसे लिखते हैं। तो आपके पास 2 कंपोनेंट है, इसलिए 1 एंड 2 करके आपने 2 कंपोनेंट लिख लिया। ठीक है, ये P1 नॉट P नॉट 2 क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है, जब वो अकेला था। तो यहाँ पे कितना कितना दिया गया है, 200 दिया गया है, 415 दिया गया है, इसकी जगह में 200 दिया गया, इसकी जगह में 415 दिया गया, तो टेंशन नहीं है। बट हमें क्या चाहिए पी टोटल पाने के लिए, पहले, क्योंकि पहला क्वेश्चन में क्या है, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन पूछा है ना, तो पूरा सॉल्यूशन का क्या होगा, पी टोटल ही होगा ना। पूरा सॉल्यूशन का क्या होगा, आपका पी टोटल ही होगा। सो पी टोटल हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो पी टोटल कैलकुलेट करने के लिए हमने कौन सा फॉर्मूला डाला, ये फॉर्मूला डाला है ना। सो ये जो फॉर्मूला हमने डाला है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, P1 नॉट पता है, P नॉट पता है, लेकिन x1 x2 पता नहीं है। x1 x2 क्या है, मोल फ्रैक्शंस है। तो मोल फ्रैक्शंस को कैसे पता करेंगे, देखिए x1 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ CH3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3 बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, है ना। वैसे यहाँ पे भी x2 अगर निकालना है तो आपको पता है कि दैट कैन रिटन एज 1 माइनस x1, क्योंकि आपको पता है कि x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1 होता है हमेशा। कितना भी कंपोनेंट्स हो सबको मिलाओगे तो आपको क्या आएगा, अल्टीमेटली वैल्यू यूनिटी आएगा। समझ गए ना, इसलिए हमने ऐसा लिख दिया है। ठीक है, नेक्स्ट। तो हमने यहाँ पे क्या कैलकुलेट किया, x1 एंड x2 कैलकुलेट किया। तो x1 x2 का वैल्यूज कितने आए हैं, x1 का वैल्यू आया 0.312, x2 का वैल्यू आया, CH2 का वैल्यू आया 0.688, 0.312 एंड 0.688, 0.312 एंड 0.688, x1 x2 का वैल्यू आया। वो x1 x2 का वैल्यू, x1 x2 क्या है, मोल फ्रैक्शंस आप निकालना जानते हो, उसको लाके पी टोटल का फॉर्मूला पे डाल दिए, तो हमें क्या निकल गया, टोटल वेपर प्रेशर मिल गया। टोटल क्या मिल गया, वेपर प्रेशर, है ना। टोटल वेपर प्रेशर हमें यहाँ पर मिल गया, समझ गए। ठीक है, तो ये टोटल वेपर प्रेशर किसकी वजह से क्रिएट हो रहा है, ये आपको तो मैथमेटिकली समझ में आया। थ्योरेटिकली समझ जाइए कि हो क्या रहा है इसके अंदर। आपने 2 लिक्विड डाला था, ये दोनों लिक्विड जो हैं वो धीरे धीरे क्या बन गए हैं, आपका वेपर्स बन गए हैं। धीरे धीरे क्या बन गए हैं, वेपर्स बन गए। तो वेपर्स बन के क्या बनेंगे, वेपर प्रेशर अप्लाई करेंगे ना। तो ये जो वेपर प्रेशर है दोनों की वजह से, इसको हम लोग ले रहे हैं कितना, यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू कितना था, 347.9 mm ऑफ Hg ले रहे हैं। समझ गए। दूसरा क्वेश्चन में क्या पूछा है, मोल फ्रैक्शंस ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज। अभी क्वेश्चन में पूछा है कि ये जो गैस बने हुए ना, वो कितना मोल्स ऑफ, कितना मोल कंपोनेंट है ना। हमें जो मोल कंपोनेंट जो हम निकाल रहे थे, किस में निकाल रहे थे, वो टोटल में निकाल रहे थे ना। ये मोल फ्रैक्शन जो हमने निकाला था, किसका निकाला था, XCH Cl3 XCH2Cl2 किसका निकाला था। ये हमने जो निकाला है वो आपका किसका था, लिक्विड का था, है ना। मोल फ्रैक्शन किसका था, लिक्विड का था। लेकिन हम किसका, अभी क्वेश्चन में पूछा गया है मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट वेपर फेज पूछा है, भाई हमें लिक्विड का नहीं चाहिए, वेपर का चाहिए। तो वेपर का पाने के लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्टली डाल्टन्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। डाल्टन्स लॉ क्या बोलता है, प्रेशर ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इनटू पी टोटल। जितना भी टोटल प्रेशर होगा उसका मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करने पर वो गैस का प्रेशर आएगा। सो पी टोटल हमने ऑलरेडी पता कर चुका था। पी टोटल कितना है गाइस, यहाँ पे तो ऑलरेडी पता है ना कितना है, 347.9 mm ऑफ Hg आपका पी टोटल है ना। तो एंड इन दोनों के ये 347.9 mm जो है वो पार्शियल प्रेशर्स में डिवाइड हुए हैं, है ना। तो पार्शियल प्रेशर्स में कैसे डिवाइड हुए हैं, देखिए पार्शियल प्रेशर जो हमने दोनों को यूज किए थे ना, इसके वजह से कुछ प्रेशर है और इसके वजह से कुछ प्रेशर है, कितना कितना प्रेशर है वो हमें जानना था। तो हमने क्या किया, यहाँ पे रॉल्स लॉ को अप्लाई किया फिर, है ना। तो प्रेशर ऑफ CH3 कितना है, आपका जो 200 mm है उसमें से 0.312 वैल्यू ही क्या हो रहा है, यूज हो रहा है ना। तो 0.312 यूज हो रहा है, तो इसका प्रेशर कितना है, 62.4 mm ऑफ Hg, है ना। ये क्या किया आपको समझ में आया कि नहीं, ये जो आप निकाले हो प्रेशर, ये अकेला का निकाल रहे हो, ये दोनों का मिलाने पर किसका आना चाहिए, टोटल का आना चाहिए, आ रहा है ना। पी टोटल ये इतना ही तो निकला था 347.9। ये जो 347.9 mm ऑफ Hg किसका प्रेशर है, किसका प्रेशर है, वेपर का प्रेशर है। किसका प्रेशर है, वेपर का प्रेशर है। किसका प्रेशर है,
वेपर का प्रेशर है, वेपर जो बन के प्रेशर डाल रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, वेपर जो बन के प्रेशर डाल रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं। तो ये 347.9 में छुपा हुआ था, इसका कुछ कंट्रीब्यूशन है CH3 का और CH2Cl2 का कुछ कंट्रीब्यूशन है। CH3 का कंट्रीब्यूशन कितना है, इतना ही है 62.4। CH2Cl2 कंट्रीब्यूशन कितना है 285.5। कैसे पता चल रहा है, आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, आप यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करके रखा है, इसको आप 1 समझ कर रखे थे ना P1, और ये इसको क्या समझ कर रखे थे P2 को समझ कर, P2 जैसे ना, तो P1 को क्या लिखेंगे यहाँ पे P1 नॉट इंटू x1, और ये क्या है x2 इंटू क्या है P नॉट 2। वही जो चीज हमने यहाँ पे अलग अलग करके ऐड किया गया था ना 200 इंटू 0.312, 415 इंटू 0.688, वो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अकेला कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं। अलग अलग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अलग अलग कॉन्ट्रीब्यूशन जानने के लिए, समझ में आ रहा है, अलग अलग का कॉन्ट्रीब्यूशन जानने के लिए। सब आपको क्या मिल गया, ये आपको मिल गया पार्शियल प्रेशर्स। क्या मिल गया आपको, पार्शियल प्रेशर्स। ये पार्शियल प्रेशर जो मिलके टोटल प्रेशर बन रहा था, वो एक एक पार्शियल प्रेशर का भी काम है यहाँ पे। पी गैस यहाँ पे बोल रहा मतलब क्या है, पार्शियल प्रेशर है ना। तो पार्शियल प्रेशर क्या होगा, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, पार्शियल प्रेशर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू पी टोटल। डाल्टन्स लॉ वही बोलता है। तो पी टोटल आपका वैल्यू पता है, मोल फ्रैक्शन आपको चाहिए, मोल फ्रैक्शन आपको चाहिए। तो मोल फ्रैक्शन पाने का चक्कर में आपने क्या यूज किया, P1 एंड P2 यूज किया। P1 P2 क्या है, P1 इज पार्शियल प्रेशर ऑफ 1, पार्शियल प्रेशर ऑफ 1 कितना आया था गाइस, 62.4 आया था ना। तो 62.4 को यहाँ पे यूज किए बाय 347.9 पी टोटल करने पर इसका आ गया मोल फ्रैक्शन 0.18। तो ये 0.18 मोल फ्रैक्शन किसका है, CH3 का। तो यहाँ पे भी हमने एक मोल फ्रैक्शन यूज किया था ना CH3 का 0.312, ये 0.312 ये भी मोल फ्रैक्शन है और ये भी मोल फ्रैक्शन, दोनों मोल फ्रैक्शन कैसे हो सकता है। ये जो आप जो दूसरे बार मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो, किसका मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो, ये सब मोल फ्रैक्शन किसका है, वेपर कंपोनेंट का है। किसका है, वेपर कंपोनेंट का है। और ये जो कंपोनेंट किसका था, ये कंपोनेंट पहले का लिक्विड कंपोनेंट का था, समझ गए। सो कंपोनेंट के ऊपर डिपेंड करता है। Okay, so this is a way of solving Raoult's laws questions. So exactly same question आपका in text 2.8 पर है, in text 2.8 पर exactly same question है। आपका काम है इसको सॉल्व करना, exactly same प्रोसीजर, पूरा सेम, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या क्या लॉ यूज किया, डाल्टन्स लॉ यूज किया एंड ऑल्सो रॉल्स लॉ यूज किया। पहले रॉल्स लॉ यूज किए, है ना, टोटल प्रेशर निकाल दिए एंड उसमें पार्शियल प्रेशर्स थे दोनों का, वो पार्शियल प्रेशर्स को यूज करके हमने फिर डाल्टन्स लॉ यूज करके पार्शियल प्रेशर्स को यूज करके मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट निकाल दिया, वेपर कंपोनेंट, ठीक है। सो दिस इज अ वे ऑफ सॉल्विंग राउल्ट्स लॉस क्वेश्चंस। ओके, यस।